अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर taken from the Punjab textbook board. In previous lecture we were discussing about the unit number 3, try again. First of all, I am giving you some brief introduction about this poem. Nobody can deny the importance of hard work. All the progress in the world is the result of hard work. Hard work can turn the impossible into the possible. It is our hard work that ensure our success in life. People who are lazy and sluggish can never succeed in doing or achieving anything in life and always remain disappointed. So, to achieve our goal, we should be hardworking. This encouraging poem has been composed by the poet W.E. Hickson, means William Edward Hickson. He has quoted this poem with 3 tries in his moral songs. The poet says, if at first you don't succeed, try again. Don't give up too easily. Persistence pays off in the end. Failure is a good lesson for people to learn how to succeed. Failure is the teacher. It is common that you may fail because at first you have no experience of how to do a particular thing. Instead of quitting after you fail, you should learn from your failure. Failure means you get something wrong. We cannot always be successful the first time around. It takes a while to learn to experiment and to succeed. We often get frustrated. We may even give up because of the fear of falling. It is certain that we will have to go through great difficulties before we reach our goals in our lives. Nobody knows only success. Try again is the only way to be successful. If you don't give up one day, you will be successful. He advised us not to give up. Instead, we should try again. Actually, the poet says that failure in life is no disgrace. With patience and steady effort, we can achieve our goal. So, one should keep on trying. It is a lesson that all should need. Try again. You will conquer, never fear. If we face any difficulty, we should observe patience and courage. We should always keep this rule in mind that hard work is a key to success and hard work requires a constant struggle to achieve the goal. This rhythmic poem has a didactic element in it which boosts our morale. So student, this was a brief introduction about this poem. Now we move on to the exercise of this poem. So first question is about the vocabulary. Write the meanings of the following words. ये जितने वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग्स लिखने हैं. Heed mean तवज्जो, means careful attention. Persevere means साबित कदम रहना, डटे रहना. Stand firm, be persistent. Strive का मतलब होता है सख्त कोशिश करना. To struggle in opposition, to try to achieve a result. Case mean सूरत हाल, an instant of a disease, injury or problem. Patience का मतलब होता है इनाम, सब्र. The capacity to accept or tolerate problem or suffering without becoming annoyed or anxious. Second question, also related to the vocabulary. Find synonym of the following words. जो वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम फाइंड करने हैं. फर्स्ट वन इज़ करेज मीन वेलर. कंकर मीन डिफीट और ओवरपावर. डिसग्रेस डिसऑनर. हार्ड डिफ़िकल्ट. रिवॉर्ड ऑनर.
Next question is related to the comprehension. First one, answer the following questions. So first question is, what is the lesson taught in the first stanza? फर्स्ट stanza के अंदर क्या सबक सिखाया गया है? The lesson taught in the first stanza is that if at first we don't succeed, we should keep on trying. Failure or success doesn't matter. It's the perseverance and continuous effort that does matter. The poet present the belief that one who tries consistently achieves success ultimately. वो ये है कि अगर हम अपनी पहली कोशिश में कामयाब ना हो तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए. हमें मायूस और बदहवास हुए बगैर हौसले और इस्तिक़लाल का मुज़ाहिरा करना चाहिए. ये बात यकीनन हमारी कामयाबी की यकीन दहानी करवाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर? हम अपनी नाकामी से क्या सीख सकते हैं? सो द आंसर इज़, वी लर्न दैट इफ़ वी फेल वी शुड परसिस्ट, वी शुड फेस द फेलियर मैनुअली. अपनी नाकामी से हमें कमज़ोरियों, गलत पॉलिसियों, गलत ख्यालात के बारे में पता चलता है. ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम जान लें कि कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस? नाकामी जो है वो एक बेइज्जती नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? सो द आंसर इज़, फेलियर प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवरसेल्फ एंड face challenges. It gives us strength to stand on our feet. So failure is not a disgrace. नाकामी हमारे लिए ज़िल्लत नहीं होती, क्योंकि जब हम इसकी वजह से मायूस नहीं होते और कामयाब होने तक अपनी मंजिल के लिए कोशा रहते हैं. ये जो जो है नाकामी जो है ये हमें मजबूत बनाती है, अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल करती है. तो इसलिए हम इसको नाकामी को बेइज्जती नहीं कह सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई? हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? देयर इज़ नो लिमिट फॉर ट्राइंग अगेन, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग टिल आवर सक्सेस. देयर इज़ नो एंड ऑफ ग्लोरी, देयरफॉर वी शुड गो ऑन ट्राइंग परसिस्टेंटली अंटिल वी सक्सीड. बार बार काम करने की या ट्राई करने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई हद नहीं होती. हमें उस वक्त तक ट्राई करना चाहिए जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड? अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो हमें क्या करना चाहिए? इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी शुड ट्राई अगेन, वी शुड बी स्टेडफास्ट एज वेल. हमें अगर अपना काम मुश्किल लगे तो हमें उसको करने के लिए मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा, और फिर उसके लिए हमें उस पर मुस्तहकम रहना चाहिए. Student, simile related to the grammar. What is simile? A figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as. गुफ्तगू का एक ऐसा अंदाज़ जिसमें दो चीज़ें जो बज़ाहिर तो मुतज़ाद होती हैं, उनका वाज़े अंदाज में अमूमन एक जुज़ यानी कि जुमले की सूरत में एक जैसा लाइक या फिर एज़ लगाकर मवाजना किया जाता है. इनके दो चीज़ें जो कि बज़ाहिर एक जैसी हैं उनको क्या किया जाए? मवाजना किया जाए. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एज़ फास्ट एज़ आ हॉर्स. देखें, उसकी तेज़ रफ्तारी का घोड़े की तेज़ रफ्तारी के साथ मवाजना किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है? एज़ का वर्ड लगाया जा रहा है. तो यहाँ पर एज़ जो है ये सिमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ कोल्ड लाइक आइस. बर्फ़ भी ठंडी होती है, और जो वो कह रहे हैं कि इतनी ठंड है जैसा कि बर्फ़ होती है. ठीक है. लाइक का वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर सिमिली के तौर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिमिली. सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस. इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ऐसा जवाब मुंतखब करना है जो जुमले के अंदर तशबीह के इस्तेमाल की वजाहत करता हो. सो फर्स्ट वन, ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर आई केप्ट एज संग एज अ बग इन अ रग. ठीक है. तो यहाँ पर हमने चेक करना है कि द सिमिली एज संग एज अ बग इन अ रग मीन्स, इसका क्या मतलब है. इसको अगर हम इसके तीनों देखें, फर्स्ट वन, देयर वर बग्स इन माई बेड. नो, इससे तो रिजेम्बलेंस नहीं है ये. बी, आई वॉज कोजी इन माई बेड. थर्ड वन, आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन द बेड. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी कि कोजी इन माई बेड. यहाँ पर एज संग एज अ बग इन अ रग का ये मतलब है. यानी कि सेकेंड वन, द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एप्पल पाई. द सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई मीन्स, तो इसका क्या मतलब होगा? फर्स्ट वन, द न्यू टीचर वॉज नाइस. सेकेंड, द न्यू टीचर वॉज बिग फ्रॉम ईटिंग टू मच पाई. थर्ड वन, द न्यू टीचर वॉज रूड. सो करेक्ट आंसर इज़
ए, यानी कि उसको वो उसके नाइस होने को बताने के लिए वो एप्पल पाई से रिजेम्बलेंस दे रहा है, सिमिली कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड वन, देयर लीडर वॉज एज वाइज एज एन ऑल। तो वाइज एज एन ऑल, इसको क्या लिया जा रहा है, इसका मतलब द लीडर thought he could fly, the leader could talk to the walls, the leader knew a lot of things. So the correct answer is C, लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जानता है और वो होशियार है या फिर अक्लमंद है उल्लू की तरह। फोर्थ वन, द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। लाइक अ 3 रिंग सर्कस मीन्स, इसका क्या मतलब होगा, द शॉपिंग सेंटर वॉज क्वाइट, द शॉपिंग सेंटर वॉज बिग, द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। ईद के दिनों में जो शॉपिंग सेंटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। फिफ्थ वन, दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग, ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी। लाइक अ बेबी मीन्स डेनिस वॉज मेच्योर, डेनिस वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, डेनिश वॉज बेबी सिटिंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, डेनिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश। सिक्स वन, मोहसिन वॉज एन एक्सप्लोजिव एज अ volcano when he found out his bike had been stolen. As explosive as a volcano mean Mohsin was happy, Mohsin was angry, C, Mohsin was calm. So correct answer is B, Mohsin was angry, यानी कि लावे की तरह वो फट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन C, also related to the simile. Fill in the blanks to make simile. Use this simile in sentences. First one is dash as turtle. यहाँ पर एज अ टर्टल, टर्टल क्या होता है बेटा, उसकी स्लो स्पीड होती है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं एज स्लो एज टर्टल, ठीक है। सेकंड, एज क्वाइट एज डैश, तो एज क्वाइट एज एन ओल, उल्लू जो होता है वो बहुत ज़्यादा खामोश होता है। थर्ड वन, एज ब्लैक डैश, तो यहाँ पर ब्लैक कैसे कह सकते हैं हम, इसको क्रो की तरह भी कह सकते हैं, एज ब्लैक एज अ क्रो, या फिर हम इसको एज ब्लैक एज अ कोल, कोल भी कह सकते हैं, कोयले की तरह। फोर्थ वन, एज टॉल एज डैश, हाँ जी, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं एज टॉल एज जिराफ भी कह सकते हैं, या एज टॉल एज जाइंट भी कह सकते हैं। फिफ्थ वन, डैश एज अ लेमन, लेमन क्या होता है, खट्टा होता है, तो यहाँ पर हम इसको बिटर कह सकते हैं, एज बिटर एज अ लेमन। सिक्स वन, डैश एज हनी, हनी क्या होता है बेटा, स्वीट होता है, तो हम उसकी स्वीटनेस से रिजेंबल करेंगे एज स्वीट एज हनी, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, also related to the grammar, the repetition of the same sound or the same kind of sound at the beginning of word or in stressed syllable। अल्फाज के शुरू में या कलमे की पुरजोर इकाइयों में एक जैसी आवाज़ों या आवाज़ों की एक जैसी किस्म का दोहराना हरफ सिफ्त कहलाता है। एलिट्रेशन मीन सिफ्त कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर्स, तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो है एलिट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रिलेटेड टू द एलिट्रेशन, रीड द पोइम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। पोइम में से एलिट्रेशन निकालनी है। सो द आंसर इज, इन द फर्स्ट स्टैंजा द लेटर टी इज रिपीटेड क्वाइट ऑफन, बीइंग गिविंग ब्यूटी टू द पोइम एज टिस ट्राई, टिस अ लेसन यू शुड ही ट्राई अगेन, ठीक है। यहाँ पर टी का बार बार हम क्या करें, इस्तेमाल करें। देयर इज अनदर लेटर एफ used as alliteration in the poem, for if you will preserve you will conquer never fear, ठीक है। यहाँ पर देखें एफ का वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है alliteration के तौर पर। नेक्स्ट also ग्रामर, पर्सनल प्रोनाउन, हाँ जी, यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, देखें यहाँ पे 3 तरह के प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी डिवीजन्स की हुई है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से। तो आई जो है वो सिंगुलर के तौर पे आता है फर्स्ट पर्सन में, यू जो है वो सेकंड पर्सन के तौर पे यूज़ होता है, और ही शी जो है थर्ड पर्सन के तौर पे, और प्लूरल के अंदर वी यूज़ होता है, और यू का जो है वो यू ही होगा, और यहाँ पर दे यूज़ होगा। इसी तरह मी जो है, फिर यू, फिर हिम और हर, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब यूज़ होते हैं, और इनके प्लूरल होते हैं अस, यू और देम, ठीक है। फिर पोजेसिव प्रोनाउन के जो सिंगुलर हैं वो माई और माइन है, यू और योर और योर्स हैं, हिज हर और इट्स हैं, और प्लूरल इनके होंगे आर आर्स, योर योर्स, इट्स देयर एंड देयर्स, ठीक है।
अब हम इनको देखते हुए इनको फिल करेंगे। फर्स्ट को फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउंस। फर्स्ट वन, देयर इज़ नो नीड टू शाउट डैश कैन हेयर यू। यहाँ पर उन्होंने फिल किया हुआ है, आई लिखा हुआ है, देखें आई कैन हेयर यू। सेकेंड है यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर डैश आर गुड टीम। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिल करें तो यहाँ पर आएगा वी आर अ गुड टीम, यहाँ पर आएगा वी, ठीक है। थर्ड वन, वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, कुड डैश हेल्प डैश प्लीज़, कुड यू हेल्प अस प्लीज़। तो यहाँ पर यू आएगा और नेक्स्ट वाले में अस आएगा। फोर्थ वन, दिस इज़ अ गुड फोटो इजंट डैश इज समीना इन डैश। तो यहाँ पर इट आएगा दोनों के अंदर, इजंट इट क्या ये नहीं है, इज समीना इन इट क्या समीना उसके अंदर है। फिर उसके बाद देखें यस डैश डैश लुक डैश इज नेक्स्ट टू फहद, यस डैट्स हेयर, सॉरी यहाँ पर आएगा यस डैट्स हर, लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फहद। फिर वो उसको आंसर दे रहा है, ठीक है, बी की पार्ट के अंदर वो उसको आंसर दे रहा है कि यहाँ पर है वो और वाकई वो अच्छी है। फिफ्थ वन क्वेश्चन है हु डिड दिस मोइंग, यानी कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है और बी के अंदर आंसर दिया गया नो डैश डिडंट ब्रिंग वन, इट कांट बिलोंग टू डैश। तो यहाँ पर इट आएगा, ठीक है, डिड दिस इट दिस मॉर्निंग। 6 में क्वेश्चन पूछा गया इज दिस अहमद्स बैग, तो बी के अंदर ऑप्शन वो आंसर दिया गया नो डैश डिडंट ब्रिंग वन, इट कांट बिलोंग टू डैश। तो यहाँ पर ही और हिम, ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंगुलर और फिर उसके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यूज किए गए हैं। 7, आई एम लुकिंग फॉर माई शू, आई डैश हैव डैश सीन डैश। तो यहाँ पर आएगा आई एम लुकिंग फॉर माई शू, हैव यू सीन दैम, एंड द आंसर इज येस दे आर हेयर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक पे आएगा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोनाउन मीन्स ग्रामर। सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक करनी है पर्सनल प्रोनाउन के रिलेटेड। एनी वन कैन गेट डैश नेम इन द न्यूज़। तो यहाँ पर आएगा हिज या फिर हर, दोनों में से कोई भी आ सकता है। सेकेंड, none of the check were cashed dash finally expired, they finally expired. Third one, my mother and her sister took dash vacation together, their vacation together। दो हैं प्लूरल आ जाएगा तो यहाँ पर देयर आएगा। फोर्थ, all are welcome dash just need to call her for direction to the party। तो यहाँ पर बेटा आएगा you का वर्ड आएगा, ठीक है, you just need to call। फिफ्थ वन, Venus and Mars have dash orbit nearer to Earth than to any other planet। तो यहाँ पर आएगा their orbits, ठीक है। नेक्स्ट 6 वन, the band starts dash tour tomorrow night। तो यहाँ पर आएगा its tour, बैंड के साथ its आएगा। 7, any of the candidate could win dash are very much alike, they are very much alike। 8th वन, everybody has dash ऑन ड्रीम्स एंड गोल्स। तो यहाँ पर देयर आएगा। नेक्स्ट है बेटा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव के अंदर यानी कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड और थर्ड डिग्री। यहाँ पर हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट है। इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग और द मोस्ट इंटरेस्टिंग है। सी क्वेश्चन related to the degree of adjective, complete the sentence by supplying the correct degree of adjective। हमने यहाँ पर correct degree of adjective लगाकर इनको fill up करना है questions को। First one, my family and I went to visit Marie last summer, of all the summer I have had I would say this was the dash summer ever। तो यहाँ पर आएगा बेटा best summer ever, ठीक है। good की जो है फॉर्म जो आएगी, डिग्री आएगी, वो यहाँ पर बेस्ट आएगी। इन सेकेंड वन, इन मरी वी इंजॉयड द हॉर्स राइड, आई रोड अ हॉर्स डैट रेन डैश फास्ट एंड डैश फास्ट ऑन द हिल्स। तो यहाँ पर फास्ट और फास्टर आएगा, ठीक है, फास्ट एंड फास्टर। फर्स्ट वन में फास्ट आएगा और सेकंड वाले में फास्टर आएगा। थर्ड, वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच आई डैश वॉज टायर्ड देन माई सिस्टर। तो यहाँ पर मोर टायर्ड आएगा,
I was more tired than my sister. Fourth one, I bought a jacket which was quite dash and my sister chose a sweater because she found it much dash to buy. तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट वाले में एक्सपेंसिव आएगा और सेकंड वाले में चीपर आएगा, यानी कि सेकंड डिग्री. फिफ्थ वन, आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन अर्थ. तो यहाँ पर लकीएस्ट आएगा, लकीएस्ट बॉय ऑन अर्थ. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. व्हेन वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज टुगेदर द ऑर्डर डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव. जब बहुत से अस्माए सिफ्त इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएँ तो तरतीब का दारोमदार अस्माए सिफ्त के फंक्शन पर होता है. तो यहाँ पर हम ऑर्डर बताया गया. फर्स्ट वन है वैल्यू, सेकंड साइज़ है, थर्ड एज या टेम्परेचर, फोर्थ में शेप, फिफ्थ में कलर, सिक्स में ओरिजिन और सेवन में मटेरियल को यूज़ करना है. तो हमने नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है डी, इसको हमने फिलअप करना है करेक्ट ऑर्डर के साथ. ठीक है, तो देखते हैं. वी सा ग्रे ह्यूज अ डैश वेल इन द सी. अगर हम इसको इनकी करेक्ट उससे करें तो कैसे आएगा? आ ह्यूज ग्रे वेल. आ पहले आएगा, फिर ह्यूज आएगा और फिर ग्रे आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है बाबर यूजेस द डैश ब्लू मीडियम रबर डैश बॉल फॉर बास्केट प्रैक्टिस. तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले देखें इनमें से मीडियम, यानी कि उसका क्या दिया गया साइज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मीडियम आ जाएगा. फिर उसके बाद उसका कलर आ जाता है. ठीक है, और फिर उसके बाद मटेरियल आता है कि वो रबड़ का है. तो हम इसके ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, मीडियम, ब्लू और फिर रबर. थर्ड वन, मेरीन ब्रॉट फ्यू आ चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर. तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके ऑर्डर के हिसाब से तो फर्स्ट वन पे आएगा, यानी कि उसकी ओपिनियन या वैल्यू आ रही है, एक है. दूसरे नंबर के ऊपर हम उसका फ्यू करेंगे, यानी कि उसका साइज़ आ जाएगा. फिर ट्रायंगुलर आ जाएगा उसके, यानी कि साइज़ के अंदर आ जाएगा, शेप में आ जाएगा ये. और फिर उसके बाद आएगा उसका कलर, यानी कि डार्क आ जाएगा. और फिर उसके बाद उसकी आ जाएगी चॉकलेट, यानी कि मटेरियल आ जाएगा. द पिरामिड ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक इनर्मस रेक्टेंगुलर. तो अगर हम इसकी देखें तो फर्स्ट वन इनर्मस आएगा, सेकंड रेक्टेंगुलर और थर्ड में उसका मटेरियल यानी कि रॉक आ जाएगा. फिफ्थ वन, शाहिद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 डैश पिज़्ज़ा स्लाइसिस. तो यहाँ पर अगर हम इसको करें ऑर्डर के हिसाब से तो 5 आएगा, फिर थिन आएगा, फिर क्रस्ट आएगा और फिर स्क्वायर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस. तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज को पिकअप करना है. फर्स्ट वन, ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. तो यहाँ पर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ ऑन लीव. तो यहाँ पर लीव जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. थर्ड, द डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल. तो यहाँ पर फाइनल जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. फोर्थ, द टॉप ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो. तो कवर्ड विद स्नो जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. फिफ्थ, द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई. तो यहाँ पर इन द रेयर जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस also related to the grammar. Put in will और be going to in these sentences. इन दो वर्ड्स को हमने इनके अंदर पुट करके और फिलअप करना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा. फर्स्ट वन, आई नो आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप. तो यहाँ पर आएगा एम गोइंग टू. आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप. सेकेंड वन, really I dash get some from the shop then I shall. यहाँ पर आएगा I के साथ shall आ जाएगा. थर्ड वन, I dash visit my mother in मुल्तान next month. तो यहाँ पर I am going to, ठीक है, यानी कि अभी वो फ्यूचर में करेगा. I am going to visit. फोर्थ वन, I dash turn the heater on. यहाँ पर आ जाएगा I am going to turn the heating on. ठीक है. फिफ्थ वन, yes are you going to I dash give you a lift. यहाँ पर आ जाएगा are you going to I shall give you a lift. यहाँ पर shall आ जाएगा. are you busy today would you like to have coffee. तो इसका आ जाएगा sorry I dash
टू द लाइब्रेरी आई हैव बीन प्लानिंग, तो यहाँ जाएगा सॉरी आई एम गोइंग टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू। 7th वन, आई डैश पुट सम पिक्चर, आई एम गोइंग टू पुट सम पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, तो यहाँ पर हमने उसके मेन आइडिया को लिखना है। द पोइम रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, होप एंड ऑप्टिमिज्म। It says that honest tries with steady effort, perseverance, and little patience are always fruitful. Great people who reach the height of glory are epitomized as they have remained firm and honest under tedious, hostile, and adverse circumstances. Any person can conquer the territory of success only if he overcomes his fear of failure through believing in himself and trying again. तो टोटल वही बात जो हम पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि बार बार एक कांस्टेंट स्ट्रगल करना, उम्मीद को ना छोड़ना और एफर्ट करना, ठीक है, और पेशेंस के साथ उस चीज़ को करते जाना। अगर आप बार बार नाकाम भी हो रहे हैं फिर भी आप गिव अप ना करें, तो यही चीज़ जो है ये मेन आइडिया है पोइम का। बेटा आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। हमने इसके अंदर जितनी भी ग्रामर की है, जितने क्वेश्चंस किए हैं या फिर वोकेबलरी वगैरह किया, तो आपने उन तमाम को घर पे प्रैक्टिस करना है, आपने उसको अच्छी तरीके से याद करना है ताकि आपको जो पेपर्स हैं उनमें आसानी हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।